नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च की 2 मस्जिदों में जमकर फायरिंग हुई है। क्राइस्ट चर्च की अल नूर मस्जिद में कई राउंड फायरिंग हुई है। हमलावरों की फायरिंग में 6 लोगों की मौत हुई है। फायरिंग के वक्त मस्जिद में बांग्लादेश क्रिकेट टीम मौजूद थी। न्यूजीलैंड के दौरे पर बांग्लादेश क्रिकेट टीम है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम बाल-बाल इस घटना में बची है। क्रिकेटरों ने भागकर अपनी जान बचाई है। क्रिकेटर तमीम इकबाल खान ने ट्वीट करके जानकारी दी है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। न्यूजीलैंड की पीएम ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट रद्द हो चुका है। क्राइस्ट चर्च के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मस्जिद में फायरिंग की तस्वीर और भागती बांग्लादेशी टीम की ये तस्वीर। इस घटना के बाद न्यूजीलैंड के पीएम ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। ये न्यूजीलैंड के लिए आज सबसे काला दिन माना जा रहा है। At the moment, the police, although they have stated that they have one offender in custody, they have advised that there may be other offenders. They are dealing with multiple scenes as well, so I can confirm that. At this stage, the police are continuing to advise those who are in the area to remain indoors. They have said that they could be dealing with other offenders. That's why they, of course, are taking the approach of ensuring people's safety. And so until people hear otherwise, I ask that they listen to the advice are being given directly by the New Zealand police. The nature of the crime, would you describe it as a hate crime? I would describe it as an unprecedented act of violence, an act that has absolutely no place in New Zealand. This is not who we are. और स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोपी कृष्ण, उनसे बात करते हैं। गोपी, क्या कुछ यहाँ पर हुआ, क्या कुछ देखा आपने? No, I was traveling work back to home, so everyone has been shut down. So all the places, all the restaurants and all the shops have been advised by the police to be shut down and stay home. Even the school kids have been locked out from the school. No one is, even the parents, everyone has been so worried and everyone are in a panicking stage. This is the first time it happened ever in New Zealand. So everyone are in a panic stage at the moment. Gopi, what is the situation right now? Right now, luckily to say, the Bangladesh team has been escaped, and the sad news is even the Hyderabad, few people, as my friend, I don't want to reveal the name at this stage, he's been shot dead in, he went for a prayer, due to the daylight saving, the prayer should start at 2 o'clock. The guy entered with a gun around 1:42. And he started shooting from the entrance door. It was too ridiculous. It should be not happened ever. Should not be happened ever. But even it's been attacked on the two masjids, one in Glenwood and one is near to the Riccarton. So the Riccarton, I send you both the Gopi, videos. do you know Hindi? One guy. Sorry. हिंदी में क्या आप बात कर सकते हैं? हाँ, बोल सकते हूँ, क्यों नहीं। गोपी, हिंदी में बताइए जरा कि अभी फिलहाल किस तरह के हालात है, क्या कुछ हुआ? सब लोग द गवर्नमेंट पुलिस वाले ने सब बोला था कि नो वन शुड कम आउट, सो एवरीवन स्टे एट होम। सब लोग घर पे होने के लिए घर पे लॉक करने के लिए, इंडोर लॉक करने के लिए बोला था, एडवाइस किया था पुलिस वाले ने। सब ऑल द बैंक्स, ऑल द ऑफिसेस हैज बीन शट डाउन, नो वन इज, कोई भी बाहर कर्फ्यू जैसे कर्फ्यू होता है ना हैदराबाद में, कर्फ्यू हो तो कोई भी रोड पे नहीं आना। तो मस्जिद वाली सारी 2 किलोमीटर तक सारी द रोड हैज बीन क्लोज, रोड बंद कर दिया। और एक बॉम्ब पे पकड़ लिया था और एक बंदे को 3 बंदे था टोटली, एक बंदे को ऑलरेडी अरेस्ट कर दिया और स्टिल और 2 बंदे के लिए ढूंढ रहा है। होपफुली दे शुड कॉट हिम सून। बट को बंदा बोल रहा कि एक बंदा गोरा है, so he's from, the shooter is from Australia, but we can't judge at this stage. ठीक है। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए विमल कुमार जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर नेटवर्क 18 के। विमल जी, जिस तरह की ये घटना हुई है,
न्यूजीलैंड के लिए और पूरी दुनिया के लिए शर्मसार करने वाली घटना है, एक और बड़ी घटना। भारत हमेशा इस तरह की चीजों से जूझता रहता है। बहुत अच्छी बात यह रही कि इस घटना में जो बांग्लादेशी क्रिकेट टीम है वो सुरक्षित है। हम कोशिश करेंगे बात करने की। फिलहाल आपको बता दें कि हम स्थानीय निवासी क्राइस्ट चर्च के गोपी कृष्ण से भी बात कर रहे थे, जो बता रहे थे कि फिलहाल यहां पर जो पुलिस है वो पहुंची हुई है, तमाम चीजों को कंट्रोल में किया गया है। लेकिन जब हमला किया गया उस वक्त हड़कंप मच गया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। गोलियों की आवाजें आने लगी। हमलावरों की फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई है। फायरिंग के वक्त मस्जिद में बांग्लादेशी क्रिकेट टीम मौजूद थी और किसी तरह से भागकर टीम ने अपनी जान बचाई। न्यूजीलैंड के पीएम ने अपने सारे कार्यक्रम इस घटना के बाद रद्द कर दिए हैं। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट रद्द कर दिया गया है। क्राइस्ट चर्च के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। क्रिकेटरों ने यहां से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन 6 लोगों की इस घटना में मौत हुई है। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। इस घटना के पीछे का मकसद क्या था, किसका हाथ था, इन तमाम चीजों पर पूछताछ चल रही है। क्राइस्ट चर्च के अल नूर मस्जिद में कई राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। हमलावरों की फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई है। मस्जिद में ये फायरिंग हुई है और ये आज न्यूजीलैंड के लिए सबसे काला दिन है। जिस तरह से एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, ये हमला किस तरह का था, इस पर जो जांच है वो चल रही है। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम जो है उसने ट्वीट किया है, क्रिकेटर ने ट्वीट किया है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और 6 लोगों की इस घटना में मौत हुई है। क्रिकेटर तमीम इकबाल खान ने ट्वीट कर इस बड़ी वारदात की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। न्यूजीलैंड के पीएम ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट होने वाला था, अब उसे रद्द कर दिया गया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जैसे ही हमलावर फायरिंग करते हैं 6 लोगों की यहां मौत होती है। क्राइस्ट चर्च की अल नूर मस्जिद में ये फायरिंग की गई, कई राउंड गोलियां बरसाई गईं और उस दौरान किस तरह से यहां हड़कंप मचा। पुलिस ने पूरे इलाके में घेराबंदी की और सिचुएशन को कंट्रोल करने की तुरंत कोशिश पुलिस की ओर से की गई। हालांकि 6 लोगों की इसमें मौत हो गई है और अज्ञात हमलावरों की ओर से इस घटना को अंजाम दिया गया। गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम जो है वो उस वक्त जब यह हमला किया गया, फायरिंग की जा रही थी, इसी मस्जिद में मौजूद थे और किसी तरह से वो यहां से निकल पाए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं संजीव कोहली जी, भारतीय उच्चायुक्त हैं न्यूजीलैंड के। उनसे बात करते हैं। संजीव जी, अब किस तरह के हालात यहाँ ये घटना जो हुई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? हेलो संजीव जी, बताइए इस घटना के बारे में। जी, बहुत ही दुखनीय घटना है और हाई कमीशन की तरफ से हम संपर्क में हैं। हॉस्पिटल्स में, क्राइस्ट चर्च में, हमारी जो कम्युनिटी एसोसिएशन है क्राइस्ट चर्च में, विदेश मंत्रालय के साथ, और हमने 2 हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं अगर कोई भी भारतीय जिसको असिस्टेंस, मदद की जरूरत है। और जो डिटेल्स है वो अभी आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने अभी हमसे संपर्क किया, उन्होंने कहा कि वो हमें और डिटेल्स देंगे जैसे उनको पता लगा, क्योंकि ये बड़ी एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। लेकिन न्यूजीलैंड एक बहुत ही पीसफुल कंट्री है, तो सब लोग बहुत ही दुखनीय घटना, जैसे मैंने बोला, टोटली अनएक्सपेक्टेड। वाकई में संजीव जी, 6 लोगों की मौत भी हुई है, इनके बारे में क्या बताया जा रहा है? और जिस दौरान ये हमला हुआ उस वक्त बांग्लादेशी क्रिकेट टीम भी वहां मौजूद थे, वो तमाम लोग भी सुरक्षित हैं। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, क्या जानकारी मिल रही है उसके बारे में? और अभी जैसे मैंने बोला, अभी आधिकारिक तौर से डिटेल्स की हम वेट कर रहे हैं, तो अभी कुछ भी कहना जो है वो स्पेकुलेटिव होगा। तो हम लोग भी अभी वेट कर रहे हैं कि सरकारी आधिकारिक सूत्रों से जब तक कोई समाचार नहीं मिलता कितने लोग हमलावर थे, क्या मोटिव था, क्या इंटेंशन थी। तो संजीव जी, क्या ये आतंकी हमला हो सकता है? देखिए, जैसे अभी जो लग रहा है ये मेरे हिसाब से तो हेट क्राइम है, क्योंकि फ्राइडे को मॉस्क में, मस्जिद में लोग इकट्ठे होते हैं जुमा प्रेयर्स के लिए। हाँ। तो मेरे हिसाब से तो ये हेट क्राइम है, क्योंकि मस्जिदों को टारगेट किया गया। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल एडिटर हमारे। शैलेंद्र, एक बड़ी घटना को अंजाम जिस तरह से दिया गया, इसके बाद अब क्या कहा जा रहा है?
देखिए, अब से कुछ देर में न्यूजीलैंड की पुलिस अपडेट करने वाली है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि क्या कुछ हुआ आज न्यूजीलैंड में। क्राइस्टचर्च इलाके में आज 2 मस्जिदों पर माना जा रहा है कि हमला हुआ है और ये इसे एक लोन वुल्फ अटैक कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि एक अटैकर ने मस्जिद के सामने पहले फायर ओपन किया, उसके बाद मस्जिद में घुसकर हर कमरे में जाकर लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। इस तरह के इनपुट्स फिलहाल सामने आ रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि अभी तक एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ऐसे और हमलावर हो सकते हैं। एहतियातन इलाके के सभी स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि वो बाहर ना निकलें। और इसी बीच न्यूजीलैंड की पुलिस ने देश के तमाम मस्जिदों से आज के लिए दरवाजे बंद करने के लिए कहा है, क्योंकि उनको अंदेशा है कि ऐसे और भी हमले हो सकते हैं। इसी बीच हमारे इंडियन हाई कमीशन ने भी ये कहा है और इमरजेंसी नंबर्स भी जारी किए हैं, ताकि कोई भी भारतीय अगर वहां पर मौजूद है वो फोन करके मदद की गुहार कर सकते हैं। आपको बता दें कि बहुत बड़ी तादाद में भारतीय न्यूजीलैंड जाते हैं टूरिस्ट के तौर पर वहां पर घूमने के लिए। तो ऐसे में उन लोगों के लिए जो वहां पर घूमने के लिए गए हों, उनके लिए इंडियन एम्बेसी के नंबर काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि जो ये हमला हुआ है इसके पीछे कारण क्या है, तंजीम क्या है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये एक लोन वुल्फ अटैक हो सकता है, जहां पर एक आदमी, एक अटैकर बिना किसी मंशा के, बिना किसी मकसद के इस तरह के लोगों को निशाना बनाता है। इसके पीछे किस तंजीम कहा था ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि जैसे भी बता रहे थे कि ये हेट क्राइम भी हो सकता है, क्योंकि जुम्मा के दिन, फ्राइडे के दिन इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मैसेज भेजने के लिए भी ये चुना गया है, ये दिन चुना गया है। तो ऐसे में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने भी इसे न्यूजीलैंड के इतिहास का एक काला दिन बताया। बिल्कुल शैलेंद्र जी, और साथ ही अब इस घटना के बाद जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि अब भारत भी ज्यादा सतर्क हो गया और सतर्कता और ज्यादा अब बढ़ानी होगी, चौकसी और ज्यादा रखनी होगी। देखिए, जाहिर तौर पर इस तरह के हमलों को रोक पाना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि जो लोन वुल्फ अटैक होता है, आपको याद होगा इससे पहले भी हमने यूरोप में ऐसे हमले देखे हैं, जहां पे हमलावर चाकू से मेट्रो में इस तरह के हमलों को अंजाम देता है। इस तरह के हमलों को रोक पाना इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि जो अटैकर होता है वो किसी तंजीम को जुड़ा नहीं होता है, कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं होता है, वो हाईली रेडिकलाइज होता है और इस तरह के हमले को अंजाम देने के लिए वो इस तरह की हरकत करता है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर सुरक्षा की अगर हम बात करें तो वहां पर सुरक्षा न्यूजीलैंड में चाचौबंद रहती ही है, लेकिन इस तरह के हमलों को रोक पाना लंदन में भी इतना आसान नहीं था। तो आपको बता दें कि फिलहाल एहतियातन जो है तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में न्यूजीलैंड की जो पुलिस है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताने वाली है कि क्या कुछ हुआ आज न्यूजीलैंड में और कौन लोग हैं इस हमले के पीछे। शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। शैलेंद्र वांगू नेशनल एडिटर हमारे तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि ऐसा घटना के बाद अब हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड में इंडियन भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो घूमने जाते हैं। ऐसे में जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो जारी किए गए हैं ताकि इसमें किसी भी तरह की जानकारी ली जा सके। फिलहाल इस घटना के बाद अब तमाम जगहों पर अलर्ट मोड पर एक बार फिर से प्रशासन आ चुका है और खास करके अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर भी चौकसी बरती जा रही है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं के बाद कहा जा रहा है कि सिलसिलेवार तरीके से भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, उससे अभी पूछताछ चल रही है। तो ये बड़ी घटना और बड़ी खबर के बारे में आपको लगातार बता रहे हैं। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की 2 मस्जिदों में जमकर फायरिंग की गई, उस वक्त की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेशी टीम की, जो यहां से अपनी जान बचाकर भागती नजर आ रही है। और उसके बाद जो क्रिकेटर तमीम इकबाल खान है उन्होंने ट्वीट करके इस पूरी घटना की जानकारी भी दी है। सुरक्षित है पूरी टीम और हमारे साथ कई लोगों ने इस वक्त बात भी की जो वहां के हालात के बारे में बता रहे थे। स्थानीय निवासी का कहना है कि हड़कंप जरूर मचा, लेकिन अब पुलिस पहुंची हुई है, पुलिस ने जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल में ले लिया है। वहीं जब हमने भारतीय उच्चायुक्त न्यूजीलैंड से बात की तो उनका कहना है कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और जो भी लोग हैं उनसे अपील की जा रही है कि कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो वो इस नंबर पर कॉल करके पा सकते हैं। तमाम जो कोशिशें हैं वो की जा रही है। इस घटना की हर ओर से निंदा की जा रही है। हमलावर कौन थे इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, इसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक संदिग्ध जिसे हिरासत में लिया गया है उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल और साथ ही जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि सारे स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं एहतियात के तौर पर। अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे। न्यूजीलैंड पुलिस ने ये जानकारी दी है।
तो स्कूल बंद रहेंगे अगले आदेश तक और मस्जिद में जिस तरह से गोलीबारी की गई और आज का दिन चुना गया गोलीबारी के लिए, फायरिंग में कहा जा रहा है कि अब जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। 27 लोगों के मौत की बात कही जा रही है। आज का दिन चुना गया, शुक्रवार का दिन, जब मस्जिद में नमाज अदा करने वालों का तांता लगा रहता है। जो लोग हैं वो पहुंचे रहते हैं यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए। उस वक्त को चुना गया ताकि कैजुअलिटी ज्यादा हो। और फिलहाल इस पूरी घटना के बाद पूरे इलाके को सील किया गया है। पुलिस ने अपने कब्जे में पूरे इलाके को ले लिया है। 2 मस्जिद है ये न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च की, जहां पर जमकर आज फायरिंग की गई है। हड़कंप इसकी वजह से मच गया। हमारे साथ स्थानीय निवासी गोपी कृष्णा लगातार जुड़े हुए हैं। गोपी, वहां पर फिलहाल किस तरह के हालात बने हुए हैं? सब लोग घर पे बैठे, रोड पे कोई नहीं चल रहा क्योंकि पुलिस वाले ने इंस्ट्रक्शन दिया कि नो वन शुड कम ऑन द रोड। तो सब लोगों को हमारे इंडोर में बैठने के लिए सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया और टाउन में हेलीकॉप्टर चल रहे हैं दूसरे को पकड़ने के लिए। मैं ऑलरेडी एक फोटो भेजा था पहले, एक बंदे को अरेस्ट कर दिया ना, बुरा है, उसको अरेस्ट कर दिया ऑलरेडी, और 2 बंदे के लिए पुलिस ढूंढ रही है अभी भी। तो अब तक किसी को पकड़ा नहीं। अच्छा, अभी वो मिले नहीं है जो 2 लोग और थे? 2 लोग और तो मिले नहीं अब तक। 27 बंदे मार गए और मोर देन 50 people are injured with a bullet injury. They are in the hospitals actually. Hospitals and schools are being closed. सब बंद कर दिए क्योंकि पता नहीं हो, और हॉस्पिटल में घुस गए तो और भी ज्यादा नुकसान हो जाएगा ना लाइफ के लिए। गोपी जी, जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त क्या कुछ सुना आपने? क्या आसपास लोग कह रहे थे? क्योंकि लोग काफी डर गए होंगे, काफी भागने लगे होंगे इधर उधर। काफी बहुत बांग्लादेश टीम अंदर ही था, मगर वो फेंस से बाहर निकल के, जब फेंस से जंप होके वो बच गए एग्जिट डोर से। मैं तो वो लोग भी मुश्किल में पड़ता था। 6 बंदे तो ऐसे निकल गए, पार्क में भागते निकल गए। और लकीली वो डेलाइट सेविंग्स में वो 2 बजे शुरू होने वाला है। तो अब अगर 2 बजे वो 15 मिनट जल्दी आ गए मेरे ख्याल से, अगर वो 15 मिनट ले गए तो मोर देन 100 बंदे तो मर जाते थे स्ट्रेट अवे। क्योंकि बड़ा मिलिट्री की राइफल लेके आया था वो, 2-3 राइफल था उसके साथ में। एक वीडियो भी भेजा था, वो शूटिंग करते वक्त खुद वो वीडियो ने निकाला। वो इट्स रियली डेंजरस। आज फ्राइडे है इसलिए मस्जिद में भीड़ भी ज्यादा रही होगी। हाँ, ज्यादा होगा। एटलीस्ट 100 से 200 बंदे प्रेयर के लिए जाता है। और जो इंजर्ड हुए हैं उनको ट्रीटमेंट देने के लिए क्या किया जा रहा है इस वक्त? प्राइम मिनिस्टर ने सब लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं, उसके साथ क्या हो रहा है, क्या एजेंसी के साथ, मे बी मिलिट्री फोर्सेस भी ऑलरेडी केम इन। और सब लोग पैनिकिंग स्टेज में, इवन गवर्नमेंट आल्सो इन पैनिकिंग स्टेज बिकॉज इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड। बड़ी बुरी हाल है क्योंकि पहले बार ऐसे हुआ। सब लोग शॉकिंग में हैं, स्पेशली द पेरेंट्स एंड द किड्स बहुत शॉकिंग में हैं। क्योंकि बच्चों सब स्कूल में है। 1:30 स्कूल इधर 2:30 3 बजे ऐसे छोड़ते स्कूल पे। पेरेंट्स सब लोग पिक करने के गए थे, सब लोगों को स्कूल पे लगा बच्चों के। इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन टू बी फ्रैंक, टू बी सेइंग। बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन है ये, और इस तरह के हालात जब बने तो उससे निपटना भी बहुत चुनौती भरा काम होता है। गोपी, ये भी बताइए कि जिस तरह से ये घटना हुई और एक को जो अरेस्ट किया गया है उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है? कुछ पुलिस ने कुछ कहा है आप लोगों से? कोई न्यूज में कोई बात आ रही है कि ये किस तरह का हमला है? ये टेररिस्ट अटैक है या कुछ दूसरा हमला माना जा रहा है, दूसरा अटैक माना जा रहा है? पता नहीं, क्योंकि गोरे को पकड़ा ना। गोरे को पकड़े तो सिर्फ हम देख सकता है, तो हम सिर्फ वही रेसिस्ट के हिसाब से, कोई पर्सनल ग्रज के हिसाब से सारी मुस्लिम को अटैक करना भी अच्छा नहीं है। क्योंकि उसके साथ कोई पर्सनल सिचुएशन कुछ हुआ तो ऐसे अटैक करना सीरियसली इट्स नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि वो ड्रग्स पे है तो पता भी नहीं, वो शूट किया ना गोरा ने। क्योंकि वो ड्रग्स पे है वो भी पता करने वाला है। अच्छा। और एक बॉम्ब भी पकड़ा गया एक गाड़ी में, एक स्ट्रीट पे बॉम्ब डिस्पोज कर दिया ये लोग ने। और गोपी, 2 लोग आप बता रहे हैं कि अभी भी पकड़े नहीं गए हैं,
और उनको पकड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। कौन से एरिया में वो भागे हैं, कहां पर, किस जगह पर पुलिस उन्हें तलाश रही है? सब सिटी में, क्योंकि सब सिटी में अलर्ट कर दिया, सब बंद कर दिया। मेनली वो क्योंकि वो एक बंदे को गाड़ी में दूसरे पे गाड़ी लेके भागते वक्त उसको पकड़ लिया था, पुलिस ने उसको चेजअप करके पकड़ लिया था। तो गाड़ी को टोक दिया था, पुलिस वाला टोक करके उसको साइड पे रुका के तो पकड़ गया था। वो मैं फोटो भेजा था अभी आपको चैनल को। हाँ। वो गोरे का फोटो। ठीक है गोपी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्थानीय निवासी हमसे बात कर रहे थे गोपी, जिन्होंने जो प्रत्यक्षदर्शी है इस पूरी घटना को उन्होंने देखा था और अपने आंखों देखा हाल बता रहे थे। फिलहाल लोगों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया गया है, तमाम लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और पुलिस बाहर बाकी संदिग्धों को भी तलाश रही है। एक को हिरासत में लिया गया है और बांग्लादेश के पीएम ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। At the moment, the police, although they have stated that they have one offender in custody, they have advised that there may be other offenders. They are dealing with multiple scenes as well, so I can confirm that. At this stage, the police are continuing to advise those who are in the area to remain indoors. They have said that they could be dealing with other offenders. That's why they, of course, are taking the approach of ensuring people's safety. And so until people hear otherwise, I ask that they listen to the advice are being given directly by the New Zealand Police. The nature of the crime, would you describe it as a hate crime? I would describe it as an unprecedented act of violence, an act that has absolutely no place in New Zealand. This is not who we